Good morning, everyone. How are you all? Good Sir, morning, good sir. morning. I'm fine, sir. What about you? I'm also fine, Beta. Thank you. In this class, we are going to study English subject, and today we are going to start a grammar junction from the chapter number 7. So let us open the book. After completing the phonics section of this chapter, we are supposed to start the grammar junction. So before moving ahead, is there any? I would like to confirm that. Is there any query, any questions from the phonics section? No, sir. No, sir. If they have completed now, this one given, this was given, these words were given as a homework to you all. तो आप लोग इसको कर लिए हैं कि नहीं? Whether you all have completed or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. After that, in grammar junction, in the grammar section today, we are going to talk about the punctuation mark. Punctuation marks. I hope already you all have learned in your previous classes. Punctuation marks के अंतर्गत आप फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, कॉमर्स कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, कॉलन, सेमी कॉलन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइंस है इंग्लिश में आप जो यूज करते हैं ड्यूरिंग राइटिंग. So you all need to learn all those things during the punctuation, in the punctuation topic. ध्यान है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उन पंक्चुएशन मार्क्स में जो आपका कॉलन है, सेमी कॉलन है और कॉमा है, दी इन तीनों के बारे में इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे. दैट मीन्स कि we have to learn more about the we have to learn the use of comma along with colon and semicolon. So comma, I hope everybody are aware with the comma, which how we use the comma. हाँ, where it is being used, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. बट कॉमा कैसे लगा होता है, क्या उसको तो पहचानते हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये कॉमा हो गया. देखिए कई सारे कॉमा मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे. लेट्स से राम श्याम वीर एंड रहीम. That means कि I have used 1 2 3 कॉमर्स. तो कॉमा कैसे लगेंगे? कॉमा का चिन्ह तो आप सभी को पता है ना? Sir. Now next is colon sir. and semicolon. अब colon and semicolon, colon कैसे लगता है? How many know? How colon looks? How many know? How many are aware with the Sir, colon? double point लगता है. Yes, Ans Pandey, you are correct. Sir, But double. Ans Pandey, you are correct, but you need to start your video. It is like this. यहाँ पे है ना? What is this? Okay, sir. अपने फोन में से हाथ रख दीजिए बेटा. To rotate your phone and you need to place your phone properly. अच्छे बच्चों की तरफ क्लास लीजिए. तो कॉलन कैसे यूज करेंगे अरुण गुप्ता? यू आर नॉट अवेयर विद दैट ना? कॉलन सेमी कॉलन आप नहीं बता पा रहे थे, कह रहे थे कि हमें नहीं पता कैसे लगता है. दिस इज हाउ यू कैन यूज द कॉलन. ये कॉलन का चिन्ह है. ओके, सेमी कॉलन के बारे में कौन बताएगा? सेमी कॉलन ऊपर वन पॉइंट एंड कॉमा लगता है. ऊपर डॉट रहता है और कॉमा. दिस इज इट्स लुक्स लाइक दिस. ऊपर आपका पॉइंट रहेगा, यानी डॉट रहेगा, पॉइंट नहीं डॉट रहेगा, और नीचे आपका कॉमा रहेगा. एक डॉट नीचे कॉमा. these two signs are known as the semicolon. ये दोनों सेमीकोलन है, ये तीनों आपका कॉलन है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In this section we are going to learn that कि where we should use comma. कॉमा का यूज कहाँ पे यूज करेंगे? we will be learning all those things. उसके बाद पढ़ेंगे कि सेमीकोलन और कॉलन का यूज कहाँ पे यूज करेंगे, कॉलन का यूज कहाँ पे करेंगे और सेमीकोलन का यूज कहाँ पे करेंगे. ओके, इट्स फाइन. Yes. Yes, sir. Let's move ahead on the content of your book. First of all, we have to read
some of the line that is that first of all we have to read some of the lines which have been taken from the preamble to the Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure to all its citizens. इन्हीं दो लाइनों में ही आपने क्या क्या किस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स आपको मिले? There are many commas. After B there is a comma. The people of India there is also comma. And लास्ट में आप देख रहे हैं all its citizens के बाद आपका कॉलन भी यूज किया गया है. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में Yes, sir. Yes, sir. economic and political. Yes. Here also we have used commas along with the semicolon. Semicolon भी है last में. Column. Yes, sir. Semicolon. यहाँ पे भी semicolon है. And in the last, at the end, there is also mini commas as well as the full stop is also there. तो आखिर ये कॉमा यूज करने का सेंस मतलब क्या है? What is the use of these commas and colon and semicolon? We would be learning all those things. तो इसका यूज करने से क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर आता है? अच्छा, कॉमा का मतलब हिंदी में मतलब कितने लोग जानते हैं? What is the meaning of comma in Hindi? Sir, अल्प विराम. वेरी गुड. Sir, अल्प विराम. फुल स्टॉप को बोलते हैं पूर्ण विराम, कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम. यानी कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा विराम लेना है, यानी विश्राम करना है. यानी ऐसा नहीं विश्राम बिल्कुल बैठ करके विश्राम करना है आपको. during reading the books, during speaking, wherever we are supposed to use the comma, वहां पे हमें थोड़ा रुकना है. ठीक है, उसी फ्लो में पढ़ते हुए नहीं चले जाना है. तो कॉमा ये हमें बताता है. तो कहाँ पे हमें थोड़ा सा विराम देना है, कहाँ पे हमें ड्यूरिंग स्पीकिंग वेयर वी हैव टू स्टॉप, ड्यूरिंग राइटिंग वेयर वी हैव टू, वो लिखते समय आप शो करें. तो वो शो करने का एक तरीके से एक तरीका है. इट इज अ वे ऑफ showing that कि where we have to stop, where we have to take a rest while reading or speaking. आपका कॉलन का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? या सेमी कॉलन का मतलब क्या हुआ? आपने अगर इसका मतलब बता दिया तो सेमी कॉलन का भी मतलब बता ले जाएंगे. आई होप. तो बेटा किसी को समझ में आ रहा है सेमी कॉलन का यूज क्या मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? किसी को भी नहीं पता? क्यों महक, दीपिका? अल्प विराम सेमी कॉलन अर्ध विराम होगा. क्या होगा? अर्ध विराम. अर्ध विराम. अर्ध मतलब आधा होता ना. Yes, sir. कॉमा का मतलब अल्प विराम, यानी थोड़ा सा आपको आराम करना है. और सेमी कॉलन का मतलब अल्प विराम. तो इसमें तो नहीं कंफ्यूज होंगे ना. कॉमा का मतलब अर्ध विराम ही बताया गया था, अल्प विराम बताया गया था. अल्प विराम. सेमी कॉलन में हाँ अल्प विराम होगा. अर्ध विराम. बेटा सेमी कॉलन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा. कॉमा इसको ऐसे लिखेंगे CONMA. अल्प विराम कैसे लिखेंगे हिंदी में? ठीक है, कॉमा मीन्स अल्प विराम. ओके, अब आता है यहाँ पे Yes, sir.
यस सर। सेमीकोलन मींस क्या होगा? अर्धविराम। सर अर्ध विराम। अर्ध आई होप अब सारा कंफ्यूजन अल्प अर्ध में अब खत्म हो गया होगा सारा कंफ्यूजन। अब कॉलन मींस क्या? कॉलन को एक्चुअल में कॉलन ही बोलते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं अपूर्ण विराम, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको कॉलन ही हिंदी में भी बोलते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आप किस नाम से किसी चिन्ह को जानते हैं वो मायने रखता है। मैंने अल्प विराम अर्ध विराम इसलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि इससे आपको इस कॉमा का यूज का मतलब पता चल जा रहा है। कॉलन अगर लिखेंगे तो कॉलन भी मैं लिख ही दे रहा हूँ फिलहाल। अपूर्ण विराम क्या होगा? सर अपूर्ण विराम। विराम। फिलहाल तो होता क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स? कॉमा सेमी मतलब कॉलन सेमीकोलन एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इन चीजों को जान लेते हैं कि व्हाट आर कॉमास एंड व्हाट आर सेमीकोलन। Now the first of all we have to notice that the entire text is a single sentence as it conveys a unified concept. आप लोग को जो समझना है यहाँ पे जब V से शुरू होता है बेटा, V से शुरू होता है तब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि फुल स्टॉप कहाँ पे लगा है जरा चेक करें। V से जब शुरू होगा तो फुल स्टॉप जहाँ पे होगा वही तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। क्यों? यस सर। आपका पहला फुल स्टॉप यस सर। V से शुरू होता है जब सेंटेंस, तो ये कंप्लीट कहाँ पे होता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी V से शुरू हुआ तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही फुल स्टॉप है। दैट मीन्स कि V से शुरू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन तक एक ही सेंटेंस है। आई होप इतना बड़ा सेंटेंस अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा कभी। नो सर। बहुत ही बड़ा सेंटेंस। सर। यस सर। कहने का मतलब है कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे, यानी एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजें कह दिया गया। सिंगल सेंटेंस जो पूरा का पूरा प्रियम्बल है, ये एक सिंगल सेंटेंस है। एज इट कन्वेज अ यूनिफाइड कॉन्सेप्ट। ये क्या कन्वे कर रहा है? एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट। यूनिफाइड मतलब एक तरीके से कई सारी चीजों को जोड़ते हुए, मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करते हुए, एकीकृत करते हुए, जोड़ते हुए कई सारी बातों को यहाँ पे जिक्र किया गया है। प्रेजेंट मोर देन वन आइडिया। अब यहाँ पे आपको सेमीकोलन का यूज बताया जा रहा है। When we present more than one idea in a sentence, एक ही सेंटेंस में जब हम एक से ज्यादा आइडियाज को कन्वे करें या किसी को बताएं या लिखें, when we present more than one idea in a sentence conveying them as one concept, we use semicolon between the ideas. जब कभी हम, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट, कई बार होता है एक ही सेंटेंस में आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, लेकिन जब एक ही कॉन्सेप्ट्स की बात करें लेकिन उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट में कौन कौन से आइडियाज को फिलहाल शामिल किया गया है, तो जब अलग अलग आइडियाज की बातें करें तो वहां पे आपको सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये यहां से लेकर के यहां तक तो सेम ही एक ही सेंटेंस है, बट जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट तो एक ही चीजें है ना, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट्स है, एक ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट की? सर अलग अलग। बेटा इसमें कौन सा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है? सिर्फ एक ही है। यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज आर देयर। आइडियाज थोड़ा सा अलग हो सकता है। पूरा जो सेंटेंस में जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, दैट इज अ वन थिंग, कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब विषय, कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ रहे हैं आप?
जब आपको सर एक ही है। ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए तो उसी बीच में आपको रेक्टेंगल भी बताया जाने लगे तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। लेकिन अगर Yes, यस sir. सर, यस सर। साइड्स की बात करें तो साइड्स के अंदर ट्रायंगल पढ़ा रहे हो या रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो या सर, या फिर आप स्क्वायर बता रहे हो, तो वो साइड्स के अंदर तो साइड्स के अंतर्गत तो ये तीनों चारों आ जाएंगे ना। यस सर। तो ये आपका ये यस सर। साइड्स की जब हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जब हमारा हेडिंग रहेगा साइड, तो साइड्स के अंदर आपका ट्रायंगल भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, पेंटागन, हेक्सागन जो भी है, तो डिफरेंट साइड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यानी वो अलग अलग आपके आइडियाज हो सकते हैं, अलग अलग आपके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम। इन द सेम वे आपका यहाँ पे प्रियम्बल में आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है। हियर वी आर हैविंग द डिफरेंट आइडियाज। तो जब हम एक से ज्यादा आइडियाज को प्रेजेंट करें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आफ्टर पॉलिटिकल यानी जस्टिस, ये जस्टिस एक तरीके से जस्टिस सोशल, अब ये जस्टिस आपका एक तरीके से आइडिया, मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बताएगा कि हम अपने सिटीजन्स के किन चीजों को सिक्योर करें। ये जस्टिस किस बेसिस पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे उनको जस्टिस दे। तो एक ही आइडिया, लिबर्टी ऑफ थॉट, अब किस चीज की छूट दें, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। इस इतने तरह की लिबर्टी के इतने कंपोनेंट्स, लिबर्टी के अंतर्गत, लिबर्टी के अंदर इतने कंपोनेंट्स का ध्यान रखा गया। तो जब कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, जब किसी सेंटेंस को अलग अलग करते हैं, यानी जो उपवाक्य हैं उनके बीच में आपका कॉमा यूज किया जाता है। कॉमा का यूज है मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए, अभी थोड़ा सा केवल आप ब्रीफ जान ले क्या है। तो जब आइडियाज को, अब यहाँ पे लिबर्टी के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनको तो कॉमा से यूटिलाइज अलग किया गया, लेकिन जब पर लिबर्टी की पूरा का पूरा ये आइडिया है, एक डिफरेंट, एक अलग ही आइडिया है, तो जब इसको इक्वलिटी से आप अलग करेंगे तो लिबर्टी अलग है, इक्वलिटी अलग है, तो ये दोनों अलग अलग आइडियाज ही है, बट कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एक है। क्या है? जो ये पीपल्स ऑफ इंडिया, जो इनके सिटीजन्स के लिए एक तरीके से सिक्योरिटी की बातें कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, विषय एक ही है, बट डिफरेंट आइडियाज, क्या क्या किन किन चीजों का समावेश होना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो ऑल दोस थिंग्स आर। तो डिफरेंट आइडियाज को यहाँ पे सेमीकोलन से अलग किया गया। पॉलिटिकल के बाद सेमीकोलन, फिर लिबर्टी की बात किया गया। लिबर्टी की सारी बातें कहने के बाद, वर्शिप के बाद सेमीकोलन, उसके बाद इक्वलिटी शुरू किया गया। फर्टर्निटी में भी यही है। यानी यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज को यहाँ पे पूरी तरीके से वन बाय वन कर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एकाग्रित एक किया जा रहा है, यूनिफाइड किया गया है, कह सकते हैं। यूनिफाइड वर्ड्स आपका यहाँ पे आया भी था। अब कॉमा की बातें करें, कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट। जब कई बार लिस्ट आपकी हो तो उसमें जब इकट्ठा आपको लिखना हो एक ही लाइन में, तो जो डिफरेंट लिस्ट हैं तो उनको कहीं ना कहीं आप सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए आप कॉमा का यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट द मंथ्स फ्रॉम द ईयर। ये मंथ, जो आपका मंथ्स को साल से अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। 6 डे ऑफ नवंबर, 1949, ठीक है। इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट, एक पर्टिकुलर डेट, मतलब इस फॉर्मेट में आपका अगर डेट लिखा जाए तो नवंबर अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे ईयर आप न्यूमेरिक में लिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपका कामा यूज करना मस्ट है। ऑल राइट। Yes, sir. यस सर। कॉलन की बातें आती हैं, अब कॉलन की बातें आती हैं। कॉलन का यूज क्या है? कॉलन आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ सबसेक्शन ऑन और अ लिस्ट। कॉलन आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ सबसेक्शन और अ लिस्ट। ये कॉलन क्या होता है? आप कह सकते हैं कि आप अगर कोई इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हुआ तो वहां पे भी आप कॉलन का यूज करेंगे। नहीं, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का कॉमा के लिए यूज करेंगे, सॉरी। अब इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्या है मैं वो डिटेल में मैं बता दूंगा, ठीक है। एडवर्ब आप लोग को पढ़ाया ही गया होगा, एडवर्ब क्या होता है वो पहचानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। Yes, sir. यस सर। वर्ब की विशेषता बताएं, ठीक है। ऐसा शब्द जो वर्ब के बारे यस वर्ब के बारे में बताता है, वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो। लेकिन सारे एडवर्ब के बाद कॉमा नहीं लगते, जो आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होते हैं। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब में क्या हो सकता है?
इंट्रोडक्टरी एडवर्ब में क्या हो सकता है, आई वुड बी टेलिंग यू ऑल, काफी लंबी लिस्ट है, तो एक एक करके मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। कॉमा और सेमी कॉलन के बाद कॉलन का यूज किया है, पहले इसको देख लेते हैं, बिकॉज टुडे आल्सो वी आर हैविंग ओनली 5 मिनट्स। तो कॉलन का यूज क्या करेंगे, कॉलन आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ सबसेक्शन ऑन और अ लिस्ट। जब किसी पर्टिकुलर आप एक तरीके से हेडिंग डालते हैं, जब कोई सबसेक्शन शुरू करना हो किसी भी लिस्ट का, then you use the colons. Here the colon introduce the different values that the preamble upholds. अब यहाँ पे क्या है, जो different values हैं जो preamble में, उसको introduce किया जा रहा है with the help of colon. अब colon आपका preamble में यूज कहाँ पे किया है, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे colon यूज किया गया, तो पे different values की बातें किया जा रहा है, different ideas यहाँ पे बताया गया है, different values की बातें किया गया है। अब जस्टिस के अंदर जो लिस्ट है, वो सारे जो भी इनके कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट लिस्ट है, उसको यहाँ पे कॉमा से अलग किया गया है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस प्लस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये एक वैल्यू के बाद यहाँ पे भी सेमीकोलन का यूज किया गया, क्योंकि यहीं पे ये आइडिया खत्म हो गया। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये आपका अलग से एक सेंटेंस जोड़ दिया गया, लेकिन आपका जो वैल्यूज है यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या शुरू बताया गया, फर्टर्निटी। इस फर्टन तो यानी वैल्यूज को अगर आप अलग करना है किसी कॉन्सेप्ट में, किसी एक ही सेंटेंस के एक ही कॉन्सेप्ट में, अगर आप वैल्यूज को किसी डिफरेंट आइडियाज को अलग करना है, तो आप सेमीकोलन यूज करेंगे। किसी कंपोनेंट को या थिंग्स को या पर्टिकुलर नाउन या एक तरीके से मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को, यानी जिसपे आप अलग अलग एक तरीके से नाउन की तरह यूज कर रहे हो, तो कहीं उसको भी कहीं ना कहीं यूज कर आप अलग करने के लिए कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यूज करने के और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्टरी एडवर्ब एंड प्लस आप दो क्लॉजेस के बीच में कई बार कॉमा का यूज किया जाता है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, कुछ आपके बुक्स में है, कुछ नहीं है। जो नहीं है वो मैं अलग से बताऊंगा, मैं अलग से टॉपिक ही इसीलिए कवर करने के लिए प्लान किया हूँ कि उस दिन मैं सिर्फ कॉमा के बारे में ही पढ़ाऊंगा। और वो सिर्फ आपके क्लास के लिए नहीं रहेगा, इट विल बी फॉर ऑल द क्लासेस। कॉमा और कॉलन एंड सेमीकोलन ये तीनों बहुत ही अच्छे टॉपिक है और सभी के लिए है, चाहे वो सेकंड थर्ड का बच्चा हो चाहे 6 7 का हो। तो कॉलन का ये यहाँ पे यूज है। अब ये आपके बुक में ही कॉमा Yes, के sir. बारे में डिटेल में बताया गया है। नाउ लेट अस लुक एट द यूसेज ऑफ द पंक्चुएशन मार्क। अभी कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन तीनों के बारे में बता दिया गया। अब एक एक करके डिटेल में यहाँ पे आपके बुक में बताया गया है। कॉमा इज यूज्ड बिटवीन अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस। ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? कोई जानता है? क्लॉज क्या होता है, जानते हैं क्लॉज Yes, sir. क्या होता है बेटा? Yes, sir. A clause is a group of word with subject and predicate. सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने। Yes, subject. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तरीके से आप बोलते हैं ना सेंटेंस मींस वाक्य, क्लॉज मींस उपवाक्य, यानी छोटे छोटे वाक्य। जब एक ही सेंटेंस में छोटे छोटे वाक्य होते हैं, यानी छोटे छोटे क्लासेस होंगे और फ्रेजेस होंगे। फ्रेजेस में आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होंगे, बट क्लॉज में आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा, ये कंपलसरी है। यानी दो सेंटेंसेस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना, लेकिन दो सेंटेंसेस को पूरी तरीके से वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये दो सेंटेंस या दो से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो यानी कई बार होता क्या है, इंडिपेंडेंट कॉमा यूज्ड बिटवीन अ डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में भी यूज किया जाता है। ये डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इसमें कई बार आप रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज करते हैं।